Hello student, this is Mehnaz Khan, your English teacher. Today student we are going to study second poem of 9th class syllabus from your Bihai book Wind. Student, originally this poem is written by Subramaniam Bharti in Tamil language, but later it was translated in English by A.K. Ramanujan. Let us see the theme of this poem. We are having two major themes. First, this poem inspires us to face the challenge and hardship with courage and firm determination. By this poem, the poet is giving a message that we should be firm and courageous. मतलब हमें वो कहना चाहता है कि हमें दृढ़ निश्चयी होना चाहिए और हमें साहस रखना चाहिए. तब कोई भी हार्डशिप, कोई भी चैलेंज, कोई भी बैरियर हमारी लाइफ में आएगा, हम उसको क्रॉस कर जाएंगे एंड देन वी नेचुरली सक्सीड. Second, when troubles come in life, the weak are more affected, so we should be strong to solve our problem. This is the fact, student, that poet is saying that those things which are weak in our life, they are mostly affected by the hardships, by the challenge. Means अगर कोई घर कमज़ोर है, you can observe this in at the time of natural disasters, कि अगर अर्थक्वेक आ रहा है तो सबसे पहले वो बिल्डिंग गिरेगी जो कमज़ोर है, जर्जर है, पुरानी हो गई है. फ्लड आ रही है तो कमज़ोर मिट्टी के घर, बने हुए घर बह जाएंगे, लेकिन जो स्ट्रांगली बिल्ड हाउसेज होंगे वो खड़े रह जाएंगे. ऐसे जो वीक होते हैं, जो जिनकी इम्यूनिटी पास कम होती है, कमज़ोर होते हैं, उन पे डिजीज़ का इन्फेक्शन ज़्यादा होता है, और जिनकी इम्यूनिटी पावर अच्छी होती है, जो फिजिकली फिट होते हैं, हेल्दी होते हैं, उन पे बीमारियों का असर कम होता है. दिस इज़ द रियल थीम. Before proceeding the explanation, let us see the question. What the poet is asking in beginning of the poem: the wind blows strongly and cause a lot of destruction. How can we make friends with it? Poet is saying that wind blows strongly means हवा बहुत तेज चलती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है, बहुत तबाही होती है. तो हम ऐसा क्या करें कि विंड हमारी फ्रेंड बन जाए और हमें डैमेज ना करे. Let us see the explanation. Wind comes softly, don't break the shutter of windows, don't scatter the paper, don't throw down the books on the shelf. Poet is saying that wind comes softly. Wind बहुत धीरे धीरे आओ छोटे बच्चे की तरह. Don't break the shutter of window. विंडो की शटर्स को मत तोड़ो. Don't scatter the paper. पेपर को मत गिराओ. स्कैटर करना, स्प्रेड करना, चारों तरफ फेंक देना. Don't throw down the books on the shelf. Shelf is अलमीरा where the books are kept. जो अलमीरा में बुक्स रखी हैं उन्हें मत गिराओ. There, look what you did. You threw them all down. देखो तुमने क्या किया, तुमने सबको नीचे गिरा दिया. Throw is the second form of throw. तुमने सब कुछ नीचे गिरा दिया. क्या सब कुछ गिराया? Books. All is used for books. You tore the page of books. Tore is the second form of tear. Means फाड़ना. तुमने फाड़ दिए बुक्स के पेज. You brought rain again. तुम बारिश को दोबारा ले आए. Brought is the second form of bring. अभी तो बारिश हुई थी, फिर हो गई. You are very clever at poking fun at weakling. तुम तो बहुत चालाक हो. तुम तो बहुत poking means बनाना, करना, fun मजाक बनाना, weakling weak कमज़ोर चीज़ों की. तुम कमज़ोर इंसानों की, कमज़ोर चीज़ों की मजाक बनाने में बहुत चालाक हो. Frail means weak. Crumbling house, crumbling door, crumbling raftel. Raftel is a use for a wood which is just like used as a beam to support the roof of a house. घर की छत को सपोर्ट देने के लिए जो लकड़ी यूज़ की जाती है, that is called raftel. तो कह रहा है कि तुम तो तोड़ देती हो. Weak means कमज़ोर जो भी होता है, हाउस उनको क्रम्बल कर देती हो. कमज़ोर घरों को तोड़ देती हो, कमज़ोर दरवाज़ों को तोड़ देती हो, कमज़ोर बिम को तोड़ देती हो. क्रम्बल वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग लाइज, क्रम्बलिंग हार्ट. तुम सारे जो वुड्स होते हैं, जंगलों को तोड़ देती हो. बॉडीज, ह्यूमन बीइंग्स को, उनके जीवन को, उनके हृदय को, सबको तुम तोड़ देती हो. द विंड गॉड विडोज एंड द क्रश देम ऑल. He wouldn't do what you tell him. Wind God winnows. Wind is just like God winnows. Winnows word is used in agriculture. When the wheat and hay separate to each other, जब हम अनाज से भूसा अलग करते हैं, उस कंडीशन को विनोज कहते हैं. तो विंड एक गॉड विनोज की तरह है. साफ गंदगी को, समाज की गंदगी को हटाने वाली एक विनोज की तरह है, जो क्रैश दैम ऑल, क्रैश कुचल देती है कमज़ोर चीज़ों को और उन्हें हटा देती है. दैम मीन्स द वीक थिंग.
ही वुडंट डू वॉट यू टेल हिम, वो पीपल्स को कह रहा है ही इज यूज फॉर विंड, विंड वो नहीं करेगी जो तुम उसे कहोगे, यू इज यूज फॉर पीपल, क्यों, क्योंकि वो तुम्हारी सर्वेंट नहीं है। सो वो कम लेट अस बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम, लेट अस जॉइन द डोर्स फर्मली, तो आओ कुछ ऐसा करें, हम घर को स्ट्रॉन्ग बना देते हैं। लेट अस जॉइन डोर फर्मली, दरवाज़ों को मजबूती से लगा लेते हैं। प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी, मेक द हार्ट स्टीड फास्ट, और हम अपने शरीर को मजबूत बनाते हैं, हृदय को मजबूत बनाते हैं। डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड विद अस, ऐसा करो, जो पोएट एडवाइस दे रहा है अबाउ लाइंस दैट कि हमें सारी चीज़ मजबूत बनानी चाहिए, तो विंड हमारी नेचुरली फ्रेंड बन जाएगी। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर, अब विंड की नेक्स्ट एग्जांपल देता है कि विंड क्या करती है, जो वीक फायर होती है, जो धीरे धीरे छोटी हल्की हल्की आग जलती है, उसको वो बुझा देती है। बट ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर रोर एंड फ्लरिश, फ्लरिश मीन्स डेवलप करना, ब्लो आउट मीन्स बुझा देना। ही मेक्स स्ट्रॉन्ग, वो स्ट्रॉन्ग बनाती है किसे, उस फायर को, जो स्ट्रॉन्ग फायर होती है उसको और फ्लरिश कर देती है। हिज फ्रेंडशिप इज गुड वी प्रेज हिम एवरी डे, मीन्स द पोएट इज सेइंग द फ्रेंडशिप ऑफ विंड इज वेरी गुड। क्यों गुड है, क्योंकि विंड की फ्रेंडशिप करने के लिए हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, तो फिर कोई भी बैरियर, कोई भी चैलेंज आए हम उसको फेस कर लेंगे। वी प्रेज हिम एवरी डे, हम हर दिन हवा की तारीफ करते हैं, उसकी पूजा करते हैं, क्योंकि उसकी क्वालिटी की वजह से ही हम स्ट्रॉन्ग बनते हैं। होप स्टूडेंट दैट यू हैव अंडरस्टूड एक्सप्लेनेशन, राइट मैसेज ऑफ दिस पोम और द थीम्स। इन नेक्स्ट part of this poem we will discuss literary device, important word meaning, question answers. Thank you student, have a good day, bye bye.